Good morning, students. Today I will start a new chapter of chemistry, that is atoms and molecules. In previous chapter I discussed about element, compound and mixture. Related to compound, you already know that two or more elements combine chemically in a fixed ratio by mass to form compound. Actually, for the formation of compound by the combination of elements is governed by 5 specific laws of chemical combination. And laws are: first is law of conservation of mass, second is law of constant proportion, third is law of multiple proportion, fourth is law of reciprocal proportion, fifth is Gay-Lussac law. Out of these 5 laws in 9th standard, in your syllabus only the first 2 are there, that is law of conservation of mass and law of constant proportion. So the first one, law of conservation of mass. You know regarding mass. Mass, amount of matter contained in a body, is called its mass. Conservation of mass, it is like conservation of energy. In 7th-8th class, you know regarding law of conservation of energy, which states that energy can neither be created nor be destroyed. Always it remains same, constant. Like that, here I will discuss regarding conservation of mass. This law states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Means chemical reaction में जब एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनते हैं या कंपाउंड की डिकम्पोजिशन होके न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, मीन्स ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कांस्टेंट रहते हैं. तो टोटल मास किसका? मीन्स रिएक्शन से पहले जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट, जो नया चीज बनेगा उसको प्रोडक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन react with oxygen to form carbon dioxide. Look at this example. Reactants, एरो साइन से हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से सेपरेट करते हैं. तो एरो से पहले कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं. सो हियर दीज टू आर रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आफ्टर रिएक्टिंग the new substance formed is carbon dioxide, so it is product. So in this case, C and O2, that is carbon and oxygen, are reactants. Carbon dioxide is product. According to this law of conservation of mass, total mass of the reactants equal to total mass of the products. Means मास कांस्टेंट रहते हैं. कहने का मतलब रिएक्शन से पहले टोटल में मास जितना, रिएक्शन के बाद भी मास उतने ही होने चाहिए. सो लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल. कार्बन एटॉमिक मास 12 ग्राम. हाँ, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में. फॉर द टाइम बीइंग किसका कितने मास है मैं पहले ही आपको बता देती हूँ. कार्बन के होते हैं 12, ऑक्सीजन के होते हैं 16. इस इक्वेशन में हम कार्बन और ऑक्सीजन यूज किए हैं. सो कार्बन मास इज 12 ग्राम. नाउ फॉर ऑक्सीजन इट इज रिटन एज O2. एक ऑक्सीजन के 16 है. O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन एटम है. सो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 32 ग्राम. नाउ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिए, इन दिस टोटल फॉर्मूला 1 कार्बन इज देयर एंड 2 ऑक्सीजन. तो जब इसके मास कैलकुलेट करते हैं तो इंडिविजुअल के मास निकाल के उसको प्लस किए जाते हैं. सो कार्बन के मास 12 लिखा गया. यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन के मास 16.
So 2 into 16, 32 plus 12 equal to 44 gram. That means mass of carbon dioxide is 44 gram. Now mass of carbon is 12 gram. Mass of oxygen is 32 gram. Here total mass of reactants means इन दोनों के मास मिला के 12 plus 32 equal to 44 gram. Mass of product is also 44 gram. Means law of conservation of mass is verified. क्योंकि total mass of reactants equal to total mass of the products. और लॉ भी यही कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने टोटल रिएक्टेंट्स के मास होंगे वो प्रोडक्ट्स के मास के इक्वली होते हैं ताकि मास कांस्टेंट रहते हैं. मीन्स टोटल मास ऑलवेज इन ए केमिकल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट. सेकेंड एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट on heating decompose to form calcium oxide and carbon dioxide. Calcium carbonate, this is the formula of calcium carbonate जिसको CaCO3 on heating गर्म करें तो डिकम्पोज ब्रेक डाउन होके CaO, it is calcium oxide and gives rise to carbon dioxide. Let's try to verify law of conservation of mass in this example. हाँ, अब कार्बन ऑक्सीजन वही है, मास कार्बन के 12, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के 16 होंगे, 16 ग्राम. बट नाउ एक्स्ट्रा इज कैल्शियम. मास ऑफ कैल्शियम इज 40. आप इसी चैप्टर में एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लर्न करोगे. अभी वो क्वेश्चन आपका एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाया नहीं, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कैल्शियम के मास 40 होते हैं, 40 ग्राम. तो 40 लिखा, एक कार्बन है मास 12, 3 ऑक्सीजन है, 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन के मास 16, तो 3 into 16 टोटल करें तो ये 100 ग्राम है. नाउ फॉर द राइट साइड जो प्रोडक्ट साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मास इज 40, ऑक्सीजन मास इज 16, 40 plus 16 56 ग्राम. नाउ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पहले की तरह उस एग्जांपल में 1 कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन, 2 multiplied by 16 equal to 44 gram. Now total mass of reactant. Here reactant is only one, calcium carbonate. Mass is 100 gram. For mass of products means इसके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मास 56 plus 44 equal to 100 gram. तो रिएक्टेंट भी 100 ग्राम, प्रोडक्ट के मास भी 100 ग्राम. सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स और मास रिमेन कांस्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, और वी कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड इन दिस एग्जांपल. नाउ फॉर द सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ कांस्टेंट रेशियो. मीन्स केमिकल कॉम्बिनेशन के टाइम जो एलिमेंट कंबाइन करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए वो एलिमेंट भी फिक्स है और किस रेशियो में कंबाइन करेंगे वो भी फिक्स है. इसी के बारे में यही लॉ बताता है. दैट इज अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ same elements combined in definite proportion by mass. Means किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमेशा वही एलिमेंट रहेंगे, कोई और नहीं, और वो जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे वो भी फिक्स रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर इज द सोर्स ऑफ वाटर, चाहे वाटर रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, लेक वाटर और रेन वाटर हो, ऑलवेज इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके अंदर 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, which combined in the ratio of 1:8 by mass.
हाउ इट इज 1:8 बाय मास, क्यों है 1:8 बाय मास, ये भी फिक्स है कि 1:8 मास पे H और O कंबाइन करेंगे। तो एलिमेंट भी फिक्स हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और किस रेशियो में कंबाइन करेंगे वो भी फिक्स है, 1:8। ये 1:8 कैसे आया? हाइड्रोजन के मास है 1 ग्राम, ऑक्सीजन के मास है 16 ग्राम। If we take the ratio in H2O, H2O में अगर हम रेशियो लें, 2 हाइड्रोजन आ गया, so 2 multiplied by 1 होगा is equal to 2 ग्राम, and for oxygen it is 16 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 2 ग्राम is to 16 ग्राम। अगर इसको सिंप्लीफाई करें then 1:8। So the ratio is 1:8 by mass. We can take another example. Carbon dioxide, CO2. It is a chemical compound. Means whatever is the source of carbon dioxide, whether carbon dioxide gas released from factories or produced during cooking or burning of any fuel, then also it always consists of 2 elements, carbon and oxygen. उसके अंदर 2 ही एलिमेंट होंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो 3:8 बाय मास। हाउ इट इज 3:8? 1 कार्बन मास इज 12, अभी बताया था, इज 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मास इज 16, so 2 ऑक्सीजन 16 into 2 32, so here we can write down 32, so the ratio is 12:32। इसको सिंप्लीफाई करें तो आता है 3:8। 4 से डिवाइड कर लें, 4 3s are 12 and 4 8s are 32। So the ratio of carbon and oxygen combination by mass is 3:8। इसका मतलब क्या है? Whatever is the source of carbon dioxide, it always consists of 2 elements, carbon and oxygen, which combine in a fixed ratio of 3:8 by mass. So this is related to law of constant proportion. Proportion means ratio है, इसका कहने का मतलब है एलिमेंट्स फिक्स रेशियो पे कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, साथ साथ जिस कंपाउंड में जो एलिमेंट रहेंगे वही हमेशा रहते हैं। So that's why the law is a chemical compound always consists of same elements combined in definite proportions by mass or in a fixed ratio by mass. According to Dalton, whether it is element, compound or mixture, the smallest particle in them is atom. Related to atom, he proposed some important postulates called as Dalton's atomic theory. According to this atomic theory, the first one, all forms of matter are made up of very small particles called atoms. All forms of matter, you know, forms of matter either element, compound or mixture. चाहे किसी भी फॉर्म का मैटर है, if we break down that matter, then the ultimate particle obtained, the smallest one obtained is atom. अगर ब्रेक करेंगे सबसे छोटा जो मिलेगा उसको एटम कहेंगे। Atoms are indivisible. Dalton के according to Dalton's theory, atoms are indivisible. Means आगे एटम डिवाइड नहीं हो सकते, and which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे ना एक्स्ट्रा क्रिएट होंगे, उनका रीअरेंजमेंट हो सकता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड्स, बट टोटल नंबर ऑफ एटम्स में कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब है ना देयर इज नो क्रिएशन ऑफ एटम और नो डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम इन ए केमिकल रिएक्शन।
Third point, atoms of a given element are identical in masses and properties. Atoms of a given element, for example, one element is hydrogen, another is carbon, next is oxygen. These are the elements. Means atom of a given element, hydrogen is one element, consists of number of hydrogen atoms. इसके अंदर कई सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे. कार्बन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. मींस ये सारे इसके अंदर जो होंगे उसको हाइड्रोजन एटम्स ही कहेंगे. छोटे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ कार्बन होंगे, यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज. मींस हाइड्रोजन एटम जितने भी होंगे, हम जानते हैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 है, तो इसके अंदर जितने भी होंगे सभी के मास 1 होगा. कार्बन के मास 12 है, तो जितने भी एटम्स हैं हर एक के मास 12 होगा. ऑक्सीजन के मास 16 है, मींस जितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे इंडिविजुअल का 16 होगा. मींस एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो हर एस्पेक्ट पे आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के साथ. ये ऑब्वियसली है, एक एलिमेंट के एटम्स हैं तो इसीलिए एक जैसे ही होंगे. दैट इज थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ, atoms of different elements are different in masses and properties. Atoms of different elements. Now hydrogen is different than carbon, different than oxygen. So atoms of hydrogen we know mass is हमने लिया 1, कार्बन 1 U लिख सकते हो. U means atomic mass unit और ग्राम में लिखेंगे तो 1 ग्राम लिख सकते हैं. उस तरह से कार्बन का 12 U और 12 ग्राम, ग्राम में लिखेंगे तो 12 ग्राम होंगे. ऑक्सीजन इज 16 U और 16 ग्राम. ग्राम एटॉमिक मास के हिसाब से हम ग्राम में लिख सकते हैं. एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो. जितने भी हाइड्रोजन है उनके मास 1 है, बट कार्बन के मास 12 है. तो ये पॉइंट कहता है एक एलिमेंट के एटम के मास दूसरे एलिमेंट के मास से डिफरेंट है. ऑब्वियस देखो, इसका 1 है, इसके 12 है, इसके 16 है. मींस डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे इन देयर मास एंड अदर प्रॉपर्टीज. Atoms combine the ratio of small whole number to form compounds. Let's discuss few compounds. Water is a compound. Carbon dioxide is a compound. Atoms combine in the ratio of small whole number. मैथ्स का whole number जानते हैं, ये 0 से स्टार्ट हो जाता है, but here we have to consider from 1. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Here 2 atom of hydrogen, 1 oxygen atom. मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 and 1 आर होल नंबर. इन कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन. इफ यू टेक H2SO4, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन. दिस 2, 1, 4 आर होल नंबर. कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन के टाइम एज ए होल एटम्स कंबाइन करता है, पर्टिकुलरली होल नंबर पे कंबाइन किया क्योंकि ये सारे होल नंबर ही है 1, 2, 3, 4. सो इन ए कंपाउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स. देन द लास्ट पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड. रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स. काइंड मींस कितने तरह के एटम्स हैं और रिलेटिव नंबर मींस कितने हैं, वो एक कंपाउंड के अंदर फिक्स रहता है. काइंड ऑफ एटम्स मींस टाइप ऑफ एटम्स. अब यहाँ देखो टाइप ऑफ एटम्स क्या है. हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम है, ऑक्सीजन है. मींस टाइप ऑफ एटम्स आर 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये फिक्स है. और पहले भी बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि whatever is the source of water always it consists of 2 elements hydrogen and oxygen. तो हाइड्रोजन एलिमेंट मींस उसके एटम ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेंगे. सो हियर टाइप ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड और काइंड ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड. हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हियर इट इज कार्बन ऑक्सीजन, हियर इट इज हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन. देन नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर. These are the relative number 2, 1, 1, 2,
2, 1, 4, तो कितने नंबर के कंबाइन किए हैं वो भी फिक्स्ड है, और कौन से एटम कंबाइन किए हैं वो भी फिक्स्ड है. दिस काइंड ऑफ एटम as well as related number of atoms are constant or fixed in a given compound. These are 6 different important points of Dalton's atomic theory. If we analyze, then it relates with law of conservation of mass as well as law of constant proportion. Law of conservation of mass में हमने क्या पढ़ा? Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Mass ना एक्स्ट्रा क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं in a chemical reaction. यहाँ सेकेंड पॉइंट देखो, atoms cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ना एटम क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं. लेट जितने एटम थे उतने ही रहेंगे. एटम को लेके ही मास है. जब एटम फिक्स रहेंगे तो अपने आप रिलेटेड मास भी फिक्स रहेगा. सो दैट्स व्हाई द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ Dalton's theory is related to law of conservation of mass. Now the last one, the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. Law of constant proportion, second law जो था उसमें है एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास. उस लॉ में क्या है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट जो कंबाइन करेंगे वो भी फिक्स हैं और कितने रेशियो में कंबाइन करेंगे वो भी फिक्स्ड है. ये चीजें ये रिलेट करता है 6th पोस्टुलेट. क्योंकि देखो कि यहाँ वही चीज बताया गया, जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो फिक्स हैं, साथ में किस नंबर पे रिलेटिव नंबर या रेशियो पे कंबाइन किया वो भी फिक्स्ड है. सो 6th postulate is related to law of constant proportion and the second one is related to law of conservation of mass.